हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 6 ऑफ मैजिक बुक। आज का जो टास्क है वो है वर्क लाइक मैजिक। इफ यू टेक एनी एक्टिविटी, एनी आर्ट, एनी डिसिप्लिन, एनी स्किल, टेक इट एंड पुश इट एज फार एज इट विल गो। पुश इट बियॉन्ड वेयर इट हैज ever been before. Push it to the widest edges of edges. When you force it into the realm of magic, how it can be a person who is born into total poverty, starts out with nothing and has very little education, goes on to become a president or a celebrity or build an empire and become one of the wealthiest people in the world. And how it is that two people can start over in a same career, and yet one person's career goes from success to even greater success, while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try. The missing link to success is gratitude, because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it's impossible to have permanent success. तो बार बार हमारे हर डे के टास्क में ग्रेटिट्यूड को बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। और मैं ये देखा है मैंने बहुत से जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो जितना ज्यादा ऊपर सक्सेस की तरफ जाते हैं वो उतना ग्राउंडेड हो जाते हैं। इवन मेरी ग्रैंड मदर भी हमेशा यही बोलती थी कि जितना फल वाला जो पेड़ होता है वो हमेशा झुका रहता है, और जो पेड़ पे फल नहीं लगते हैं वो हमेशा स्टिफ खड़ा रहता है। तो आप जितना ज्यादा हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतना ज्यादा हम ग्रो हो पाएंगे। टू ब्रिंग सक्सेस और इंक्रीज द गुड थिंग्स इन योर जॉब और वर्क, like opportunities, promotions, money, bright ideas, inspiration, appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more grateful you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Whoever has gratitude for their work will be given more, and he and she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be given for him. आपके पास जो भी काम है, अगर आप छोटा सा भी कोई भी काम करते हैं, अगर आपके पास अभी फिलहाल शायद एक क्लाइंट हो या एक छोटा सा आप कुछ भी कर रहे हैं, यू जस्ट हैव स्टार्टेड योर जर्नी, आप उस एक चीज को भी आप ग्रो होते हुए अगर आप देख रहे हो तो बी ग्रेटफुल। You cannot you control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customer and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downwards. बहुत जगहों पे मैंने ये देखा है कि लोग जैसे जैसे आगे ग्रो हो रहे होते हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनको बिजनेस मिल रहा है, वो खुश है इस बात से कि वो दुखी है इस बात से। तो यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है कि ये स्ट्रेस में है, मैं इनको और दूं भी कि नहीं दूं। तो अगर आप ग्रेटफुल है, डेट मीन्स कि आप और मांग रहे हैं कि थैंक यू, मेरे पास और क्लाइंट्स आए। लेकिन अगर आपके पास, अगर सपोज करो आपका कोई कार्ट है या कोई बिजनेस है और बाहर लाइनें लगी हुई हैं कि आपके पास बहुत सारे लोग खड़े हैं उसको लेने के लिए। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। वड़ा पाव वाला गर्ल आजकल जो फेमस है, अगर मैं किसी उसमें नहीं जा रही हूँ, मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपका कोई भी बिजनेस है वो बहुत अच्छा चल रहा है, यू आर फ्लरिशिंग, बट अगर आप उससे परेशान हो रहे हैं तो वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि यूनिवर्स में ये मैसेज आ रहा है कि वो चीज आपको नहीं चाहिए। दैट मीन्स आपको और बिजनेस नहीं चाहिए। तो आपके पास बिजनेस आना
बंद हो जाएगा। You should love your job. Whatever it is, be excited about going to work. You shouldn't settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it is not your dream job, the way you receive your dream job is by first being grateful for the job you have. अब मोस्टली क्या होता है कि जॉब में जो हमारे मैनेजर होते हैं या बॉस होते हैं, या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके क्लाइंट्स हैं, तो बिजनेस में तो हम फिर भी ग्रेटफुल होते हैं, क्योंकि बहुत टाइम से यही बताया जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो गॉड है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। लेकिन जॉब में बहुत मुश्किल होता है अपने बॉस को, बॉस के लिए या मैनेजर के लिए या अपने एम्प्लॉय के लिए ग्रेटफुल होना। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि थिंक अबाउट ऑल द थिंग्स यू कुड बी ग्रेटफुल फॉर इन योर वर्क. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. अगर आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, इवन मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, तो अभी जैसे कुछ टीचर्स से मेरी पीछे मुलाकात हुई, तो वहाँ वो लोग टीचर्स अपने जॉब को बहुत ज्यादा मतलब ऐसा फील कर रही थी कि वो बहुत परेशान है जॉब से। तो मैंने उनको एक ही बात बोली थी कि अगर आज आप ये जॉब छोड़ देते हो तो हजारों लोग वेट कर रहे हैं आप आपका उस जॉब को छोड़ने के लिए। मतलब आप वो जॉब छोड़िए और लाइन लगी हुई है उस जॉब को पाने के लिए। पता नहीं लोग कितनी पढ़ाई करेंगे और कहाँ कहाँ तक कौन सी डिग्री, टीचर की जॉब आपकी वाली कुर्सी पे आने के लिए लोग लाइनों में खड़े हैं। तो बी ग्रेटफुल कि वो जगह आपको मिली है। तो आप जिस भी जगह पे हैं, आप जो भी प्रोफेशन में हैं, जो भी जॉब में हैं, बी ग्रेटफुल। क्योंकि एक टाइम पे शायद आपके लिए भी वो बहुत बड़ा ड्रीम था कि वो जॉब आपको मिल जाए। अब आपको मिल गया है तो शायद वो फॉर ग्रांटेड आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं तो उससे बेटर आपको मिल जाएगा। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for. The more deeply your इसमें हमने मिस कर दिया, सॉरी, यहाँ पे थे हम। Think about the time saving equipment you use such as phone, printers, internet, computer. Think about the people you work with, the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier such as receptionist, assistant, delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspect of your job that you love to do. अब इसमें हमें करना क्या है, डे 6 में सेम हम डे 1 वाला तो रिपीट करेंगे। एवरी डे 10 ब्लेसिंग्स हमें लिखना है, थैंक यू करना है। एंड सेकेंड है, वाइल एट वर्क टुडे इमेजिन यू हैव एन इनविजिबल मैनेजर फॉलोइंग यू अराउंड टेकिंग नोट्स एवरी टाइम यू फाइंड समथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर। योर जॉब टुडे इज टू लुक फॉर एज मेनी थिंग्स एज यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। अपनी जॉब में आप पूरा दिन नोट करिए कि आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हैं। ट्रस्ट मी, अगर आप ये लगातार करते हैं तो आपको अपनी वो जॉब भी अच्छी लगने लगेगी जो शायद आपके लिए बहुत ही मतलब टॉर्चर जैसी जॉब भी आपको अच्छी लगने लगेगी। Have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying I am so grateful for. अगर आप अपने मैनेजर को ये बात बोले सामने से कि थैंक यू बॉस और थैंक यू मैनेजर, थैंक यू सर फॉर बीइंग विद मी, और आपने उनसे बहुत सारी नई चीजें सीखी होंगी, बहुत सारी लर्निंग्स उनसे आपने ली होगी, बहुत सारा चीजें आपको ऐसा अगर वो आपसे अप है किसी भी चीज में तो डेफिनेटली उनमें कुछ क्वालिटीज होंगी। तो आप सिर्फ उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए और उनको थैंक यू बोलिए, थैंक यू फॉर बीइंग इन माय लाइफ।
और ट्रस्ट मी, जब आप सामने से किसी को थैंक यू बोलते हैं ना और आपकी वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होती हैं, तो वो भी हमेशा आपको अपना अपना जूनियर नहीं समझेंगे, वो भी आपको बड़ी की तरह लेंगे। मेरी लाइफ में मैंने बहुत ज्यादा बार जॉब नहीं करी है, लेकिन मैंने शायद 2 जगह या 3 जगह, 2 जगह जॉब करी है। और आज इस बात को बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मेरे सीनियर्स मेरे साथ उतने ही कनेक्टेड हैं जितने मतलब वो उस टाइम पे हुआ करते थे। मतलब आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर माई ऑल माई सीनियर्स, जिन्होंने मुझे कभी भी कुछ सिखाया था किसी भी जॉब में। मैं उनको आज भी हमेशा थैंक यू बोलती हूँ, उनके लिए आज भी ग्रेटिट्यूड है मेरे मन में। और वो ग्रेटफुल जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है, वो ही आपको हमेशा एक अच्छा ह्यूमन बनाती है। और जब आप अच्छे ह्यूमन बनते हैं तो एबंडेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो यहीं पे हम इस डे 6 को क्लोज करते हैं। बी ग्रेटफुल एंड जस्ट अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ एबंडेंस इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे डे 7 में। थैंक यू।